little late, no problem, and a little brief, no problem. But it's a Wetlands Day is extremely, extremely important. There is no family which doesn't love to go to a lake or any water body. In fact, my own childhood was in Patiala, and on Mall Road there was महात्मा गांधी statue. एक तालाब था man-made, which was our biggest temptation to go there. We used to walk. Patiala mein, we had no cycle. Scooter was not even heard of. And rickshaw mein jana was costly. So we were totally environment friendly. And we would go to, and after a very, very long time, I went to that Mahatma Gandhi statue to see Talab kaisa. I'd gone for an environment talk in Punjabi University, Patiala, and by chance they took me there. And I was sad to say that Talab, that water body, had almost disappeared. And महात्मा गांधी जी की भी मूर्ति का बुरा हाल था. तो आई डोंट नो वो सुधरा कि नहीं सुधरा. दोबारा जाऊंगा ये प्रार्थना करते हुए कि दैट मेरे बचपन की वो जो वेटलैंड है वो मुझे ठीक से दिखाई दे. द टॉक इज डेडिकेटेड टू रघुवीर खानपुर जी, who was the Director General of Science City. It was Kanpur Saab who rang me about 12 years back or 11 years back to say that as a great exception, he wants my third talk on, first was on Environment Day, second on Ozone Day, and third on Wetlands Day. I was embarrassed. I couldn't tell him that I don't know कि Wetland Day किस डेट को होता है. उन्होंने 3 महीने पहले बोल दिया था मुझे, so that I could prepare. And after that, 2nd February is a day which I always wait for, and I dedicate it to the late scientist, science man of Punjab. In fact, उनके मोहाली में उनके घर के बाहर में नेम प्लेट पे भी लिखा है the Science House. So Earth is a big home for everyone, and I think most of the elders they don't enjoy it that much as these little ones do, and this talk is dedicated to all these little ones who love to go to a wetland, and wetlands are lifeline of our kids, grandkids, and great grandkids. That's my daughter. These are my grandkids. And I told you about my wetland. My daughter grew in Chandigarh, going to repeatedly to Sukhna. She was studying in Sacred Heart. It was very common for her to go to Sukhna Lake. And these little ones used to come from USA, Cincinnati. And even for them, the Chandigarh Lake was a great attraction. Wetland Day is celebrated annually on 2nd February. This day is observed to create awareness among people about the importance of wetlands and different ways to restore their rapid loss and degradation. Wetlands play an important and significant role in maintaining the ecological balance. Wetlands perform many ecological functions. Knowledge and understanding about complexities wetland ecosystems represent is still developing. Wetland ecologists have already documented the following environmental benefits wetlands provide: water purification, flood protection, shoreline stabilization, groundwater recharge, and stream flow maintenance. I would tell a small incident. I was a BSc Geology first year student in Punjab University Geology Department. I used to cycle from university to Sector 23, where I used to live. And I used to pass through Sector 24, where the PGI people have their houses. There was one ground which used to get very easily filled up, and water used to stay there. I was being taught
groundwater those days in my physical geology class, and I and my teacher, Dr. Shreyansh S.P. Jain, he's a veteran. He should be around 85, 86. He's in America. I told him, sir, I have located a locality in Chandigarh where the water table has reached the surface. He said, that's a great observation. And today, when I'm talking about wetlands, um, that's what wetlands are. In wetland, the water table, which normally isn't a ground, that's the level below which all porosities are saturated with water. Uh, Here, the water table is on the surface or very shallow. It can it can disappear, it can reappear, it can be swampy, it can be muddy, it can be marshy, or it may be a full-fledged water body. Wetlands are encompassing lots of permutations and combinations of water bodies. There are lots of dogmas about wetlands. These are among the most productive ecosystems in the world. Wetlands act as sponges on the landscape. Wetlands are kidneys of the landscape. Wetlands are hotspots of biodiversity. Those days, I never thought that as a geologist, I would ever work on any wetlands. As chance would have it, I was part of an international expedition to Soker Lake in Ladakh, which is a salt lake, a huge lake, which becomes very swampy. If you go early, you have the risk of virtually sinking into the mud. And if you're driving through it, you, together with your Jeep, can go in it and maybe never come out. So, wetlands are big fun. And I'll narrate that story of we had German guests. The expedition was funded by a German TV channel, and there were guests from Free University, Germany, Berlin, and it was organized by Dr. Bahadur Kotlia, who recently gave that Nainital talk, and Bahadur was a youngster in Punjab University, so it was a friendly arrangement. We went together twice to Soker Lake in Ladakh. I'll give you some glimpses of Soker Lake. Now, this one poster of Vigyan Prasar, the Science Communication Council of Department of Science and Technology, uh, and groundwater, these are extremely useful to a schoolboy. The two young boys at place, the sons of Arun Bansal, yeah? And here is an intro, a quick intro, but a very comprehensive intro. The idea of today's talk was not any great academic activity, not any research input. It was the idea is to create an appreciation about the whole project of wetland, the Ramsar Convention, which was held in the Ramsar sites, which are important sites of wetlands, the world over. There's a huge focus on wetlands of all countries. I'll give you a quick glance through wetlands of India, wetlands of Pakistan, and wetlands of wonderlands, not wasteland. You see, many colonizers and I would say dishonest chaps in the society are always looking for an opportunity to grab a wetland. They would like to dump all the solid waste, malwa, chalwa, jitna usme phenk do, so that the wetland disappears and they can have their colony plot cutting. In fact, even our Sukhna Lake is threatened by the silting and by the weeds, and the colonizers have in their dirty mind that, in fact, they had one of the two governments, I will not name, otherwise वो मेरे से नाराज हो जाएंगे. They had contacted Tata builders that 30-story blocks, towers were to be made
on the other side of Sukna Lake. And God bless Punjab and Haryana High Court and all the great judges who rose to the occasion. And for last, I think, a few decades, they have been putting their foot down. And some colonizing happened. The whole catchment of the Sukna is meant to be uh, preserved in its pristine beauty and with the original ecology and not to be encroached on by anyone. Wetlands are areas of marshes, lakes, mudflats, mangroves, coral reefs, fens, peatlands, and bodies of water. Water within these areas can be static or flowing, fresh, brackish, or saline. A big example of a wetland is our Sundarban Delta. That's a great example. Uh, we had gone to the beach close to New York, and there was so much mangroves that was a glorious, clean example of another wetland over there. The Ladakh wetland, Sokar, I already talked to you. Sukna is a man-made wetland, and obviously these reservoirs of our big dams, Bhakra, etc., all are they go into that category. Punjab has such beautiful areas, or some glimpses of the Punjab wetlands we'll be seeing soon. These are transitional zones between aquatic and dry terrestrial ecosystems. वो बारिश में एक दूसरे में merge कर जाएंगे. But there would be an area, in fact, Bombay, Chennai, and even Bangalore, there are areas which have been encroached in the wetland. They've been encroached by the colonizers, and they built up towers. And when even the winter rain, often those areas are flooded. And I remember after the winter flooding of those colonies, some, as usual, the TV channels go, कितने घरों में पानी घुस गया साहब बारिश का. वो कोई बुजुर्ग था, वो बोला घरों में पानी नहीं घुसा है जी, ये घर झील में घुस गए हैं, झील का पानी घर में नहीं घुसा है. So this story all over. Fortunately, Chandigarh Sukna Lake is still safe. I've seen a Punjabi movie with a satire on Chandigarh Sukna Lake dried up, and the plots being sold in the Chandigarh Sukna Lake. This is a huge story which will not go further, otherwise this talk has to be quick today. What is the World Wetlands Day? 2nd February each year is World Wetlands Day. It marks the date of the signing of Convention on Wetlands on 2nd February 1971 in the Iranian city of Ramsar on the shores of Caspian Sea. So this is WWD, World Wetlands Day, was celebrated for the first time in 1997 and made an encouraging beginning. Subsequent World Wetlands Day have been organized around such suggested themes as the importance of water to life and of wetlands to the supply of water. And in 99, people and wetlands. I don't know what the theme of the February 2023 this year. I tried to search it. I was always getting the theme of 2022. But wetland, thanks to late Ragbir Khanpurji, who was my great mentor, who was my patron, and who used to, in fact, all my popular talks have their origin in his mentoring and his giving me opportunities. Science City. He told me, I love the way your audience claps in the Science City auditorium. And I love the way you speak Hindi, Punjabi, and English mixed with them. And I must give this message. When we talk of wetlands, we talk of environment, we talk of anything which is beautiful in this world, we should talk to the audiences उनकी मातृभाषा में, regional languages में. हमारी new education policy also says this, that we should communicate in
लोकल लैंग्वेजेस वही चलती है बात जब तक माँ की बोली वाली भाषा में ना हो। आई एम सॉरी, वो टेक्स्ट इंग्लिश में थी तो मैं भी अंग्रेजी बोलते चला गया, उपदेश दे रहा हूँ रीजनल लैंग्वेज का और बोल रहा हूँ इंग्लिश में। थोड़ी जो टेक्स्ट है वो मैं पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। Wetlands are heritage of all kids today and future. Conserve these. So these are imagine Chandigarh without Sukna Lake. This is closer home. So this is an example. Imagine the entire reservoir of our Gobind Sagar and other dams filled up with silt. This we have seen car seva in Sukna Lake. We have seen dredging. We have seen dams there to block. We have seen water being filled up in the Sukna Lake. The crisis of Sukna's existence is always there. The fight to preserve it, to conserve it. Wetlands in danger. In fact, this is a book. This is a book title. World Conservation Atlas Wetlands. In fact, he knew, Kanpur Saab knew that when I said I'm a paleontologist, I do nothing for wetlands. He said, I know you will have to struggle, but I struggled for 3 months and I researched it. My only qualification was that I had done 2 expeditions to Sokar Lake and we had done the drilling. We were studying for the layers of that lake sediment for climate change evidences, the story of the climate change in the last thousands of years. That was our qualification. And still, I would say I'm not even a serious student of wetlands, but I'm pretty equipped to talk on popular facets of all wetlands in our country. These some pictures, some boards on the Sukna Lake are extremely useful. I collect these because I never leave any illustration which I can use in my popular talks. They are written there, मानव निर्मित नम भूमि, wetland का हिंदी में है नम भूमि, नम भूमि. Wetlands are nowadays आजकल अनेक उद्देश्यों के लिए नम भूमि बनाई जाती है. पानी को शुद्ध करने के लिए, जैविक विविधता के रक्षण के से नम भूमियों की भूमिका. All these slides would be available to you in the video which Arun would create. And so just as we have World Heritage Cultural Natural Sites all over the country, and all over the country, we have very, very important wetlands, huge lakes, and all over our coastal regions. But because we destroyed some of, in fact, once the Sundarban Delta mangroves go, there is a national park in Sundarbans. Calcutta would be threatened. The tsunami which struck Andhra and Tamil Nadu, it killed many people more than it would have normally had we not destroyed the mangroves. So wetlands are, ये कवच है हमारा, कुदरती कवच है. इसको बचा के रखना, एक तो इतना सुंदर लगता है, ऊपर से हमारी प्रोटेक्शन करता है. तो अपना ही कवच खराब करने में इससे बड़ी तो बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी कि जो कुदरत ने हमें बख्शा है हमारी सुरक्षा के लिए, हम उसी को खराब कर दें. सब कुछ फटाफट के दृश्य जो पंजाब की वेटलैंड्स हरी के शायद ये है, ये पिक्चर्स मेरी खींची नहीं हुई हैं, शायद पंजाब टूरिज्म की हैं. दिस पंजाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी 26 सेक्टर में जो ऑफिस है, उन्होंने कोई कैलेंडर दिया था, उससे मैंने खींची थी. या तो ये लेक जो है, ये तिब्बत में बनी थी लैंडस्लाइड से. आजकल लैंडस्लाइड पे बड़ा चर्चा है ना. लैंडस्लाइड टूट गया तो लेक थोड़ी घट गई. बाद में 2005 में एक ये लैंडस्लाइड टूटा और दिन के 3 बजे बड़ा जबरदस्त फ्लैश फ्लड आया किन्नौर में लेक के टूटने से, और 20 चाइनीज की डेड बॉडीज वर वॉश्ड इनटू किन्नौर, एंड दैट डे nobody died.
Before this, in 2000 July end or 1st August, there was a midnight flash flood in Satluj, which killed 200 people. 93 or 98 bridges were smashed. All powerhouses uh, were smashed. Huge damage happened to okay, this is ये 2004 की पिक्चर है, but the breach of this lake happened in 2005. उस दिन मैंने एक आर्टिकल भी डाला था इंडियन एक्सप्रेस में, और अभी दिखाता हूँ आपको। ये जैसे इतनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वेटलैंड्स में दिखती है कि बच्चे वहाँ पे जाके उनको इतना मजा आता है बिकॉज ऑफ so much of water life in these areas. Now, hydrological functions, groundwater recharge बोला था ना, क्योंकि पानी खड़ा होगा तो ग्राउंड वाटर में नीचे वो उसको नीचे चला जाएगा फिल्टर होके, शुद्ध होके, and you have lots of movement of water. And ये एक फिगर है जो बहुत अच्छी, अनसेचुरेटेड जोन, एंड ये वाटर टेबल है, और यहाँ से ये वाटर टेबल सरफेस पे आ गया, तो ये वेटलैंड है, और इधर में ये ट्रांजिशनल जोन है, और नीचे का ये सेचुरेटेड जोन है। तो ये एक एग्जांपल है वाटर टेबल क्या होता है, अनसेचुरेटेड जोन क्या होता है, सेचुरेटेड जोन क्या होता है। इतनी सी नॉलेज ग्राउंड वाटर की हर किसी को होनी चाहिए, बिकॉज यही हमारी जिंदगी का आधार है। ये कुछ पिक्चर्स बाहर की हैं, इनको मैं फटाफट निकल के अपने उस पे आ जाऊं। मैंग्रोव्स की बात मैं कर रहा था। मैंग्रोव्स आर कलेक्शंस ऑफ वुडी सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज that have adapted to growing in the intertidal zone. They are highly productive ecosystems that provide essential nursery grounds for many marine species such as fish and lobster. They provide food and shelter for many organisms both above and below the water. सुंदरबन में एक मूवी है सुंदरबन की, ब्रिटिश काउंसिल की सपोर्ट से बनी है। उसमें वो बताते हैं कि जो वहाँ पे बाघ है वो सॉल्ट वाटर पीता है, एडजस्ट हो गया है। एंड बहुत सुंदर मूवी है, 15 मिनट की है, मेरे पास है। उस पर कोई कॉपीराइट नहीं रखा उन्होंने, इंडियंस ने बनाई है ब्रिटिश काउंसिल की सपोर्ट से। लद्दाख पे एक है, एक उड़ीसा पे है, एक कुल्लू पे है। जो सुंदरबन वाली है वो मैं अरुण के थ्रू शेयर कर दूंगा, सोशल सब्सटेंस पे भी और यूट्यूब पे भी हम देखेंगे। I don't think anybody would have any objection to that, because purpose ही awareness था उसका। And अब rivers को थोड़ा बात कर लेते हैं, because rivers में और इसमें एक वो एस्चुरीन जो एरिया रहता है उसमें एक ट्रांजिशन रहती है। Rivers represent only 1% of fresh water available on earth and support a unique diversity of plants and animals. Rivers support high quality of fish, protein and livelihoods along its courses. Major world rivers and deltas are Amazon, Mississippi, Yangtze, Mekong, Ganges, Brahmaputra, Indus and Nile. तो जो बड़ी बड़ी नदियां देखे हमारे, ऐसा कोई चीज नहीं है इस प्लेनेट की, कुदरत की, सौंदर्य की, जो हिंदुस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। हम जब भी बात करते हैं हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, हम ये राजनीतिक लकीरों को बिल्कुल हम नहीं इसको कभी हमारे जो बड़े थे वो पहले पढ़ाते थे, इंडिया की पार्टीशन से पहले जिन्होंने पढ़ाई थी, किताब भी ऐसी थी, जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड बर्मा, वो इंडिया में पाकिस्तान वगैरह सब इंक्लूडेड था। इनफैक्ट श्रीलंका, हम पूरी जियोलॉजी की बात करते हैं जब भी बात करते हैं। ये हरी के एक बहुत ही गजब का ये एरिया है पंजाब का, और इसमें बहुत करीब है, आप लोग जा सकते हो। देखिए क्या क्या गजब, इसकी बात करने लगे तो वो बात रह जाएगी पूरी। ये कांजली वेटलैंड, एंड ये रिपीट हो गई। नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर सुखना लेक पे ये प्रकृति परिचय केंद्र है एक, सैर करते करते आप वहाँ पे जरूर जाइए, आखिर में है जब उधर की रोड पे पहुँचते हैं।
वहाँ पे उस दिन कोई इंस्पेक्शन थी, एक जज साहब को इंचार्ज बनाया गया था देखने के लिए कि इस वेटलैंड की कंजर्वेशन का। तो मुझे कुछ प्रेस के मित्रों ने कहा था कि आप भी वहाँ पे आइए। और ये रही वो कुछ खबरें सुखना लेक ही नहीं, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बने ज्यादातर चेक डैम में सिर्फ सिल्टी बची है। आप जो मर्जी कर लीजिए, अगर आपने पेड़ काटे हैं अंधाधुंध और नहीं पेड़ों को रखा, तो आप किसी झील को नहीं बचा सकते, किसी वेटलैंड को नहीं बचा सकते। यही होगा अल्टीमेटली। ये सारे वेटलैंड्स का अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और यही वाला होगा। सुखना पे तो एक दिन एनडीटीवी वाले ले गए थे मुझको बातचीत के लिए, तो मैं ऐसे बोल ही रहा था बाई चांस, और वहाँ सच में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जून का महीना था, लेक बेड पे क्रिकेट हो रहा था। और मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों की मंशा है कि सुखना लेक सूख जाए और वो वहाँ पे प्लॉट काटें और फिर वहाँ बड़े बड़े टावर बनाए। क्या ऐसा ऐसा बेड़ा गर्क हमारे शहर का ना हो तो अच्छा। ये क्या कहा था हाई कोर्ट ने, 1 मई को प्रशासन, लेक के पानी के लिए रास्ते साफ किए जाएं। 21 दिन बाद भी कोई काम नहीं हुआ, नतीजा सुखना का सुख गायब। ये देखिए, हिंदी की हेडलाइन बहुत गजब की होती है, अंग्रेजी की हेडलाइन भी होती होगी पर उसमें वो मजा नहीं आता। सुखना का सुख गायब। अब देखिए, सारा मसला ही सुखना के सुख से है। कुछ लोगों को सुख आएगा वहां पे 30 मंजिला टावर्स बना के, वो अब तो उनका सारा प्रोग्राम फ्लॉप हो गया है शायद। हालांकि टाटा भी एग्री कर, ये पूरा का पूरा एरिया दिस इज मेंट टू बी कंजर्व्ड, पर इधर भी बस गए, इधर भी बस गए, वहां भी बस गए। और क्योंकि बस गए, ये अपना चंडीगढ़ का एरिया है, अब यहाँ पे वो हथौड़ा तो चल नहीं सकता, पर अब क्या है, जिन्होंने खरीद खराद लिया है वो फंस गए हैं, ना इधर के ना उधर के। तो lesson of the story is this: never ever support those who encroach on a wetland। किसी भी दिन कोर्ट की नजर पड़ जाएगी, टेढ़ी तिरछी नजर कोर्ट ने डाल दी, तो सारा पैसा भी धरा रह जाएगा और आप उसको ना बेच पाएंगे ना कुछ बना पाएंगे। तो ये एक चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल हुआ था कोविड से पहले, और सुबह सुबह का टाइम था। ये गजब की वो एक सिचुएशन थी। इतनी सुबह सुबह मैं कभी चंडीगढ़ लेक पे नहीं गया था। सनराइज पे जाना था। मैं चंडीगढ़ लेक के, या बड़ा भारी म्यूजिक था। ये बंगाली बाबू हैं जो जिन्होंने बहुत गजब का, ये मैं एक मेरे यूट्यूब पे लगा हुआ है, ये एक 3-4 मिनट का। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल to look through some small videos on my YouTube channel Earth Talks, and you can share these, and really they are very enjoyable। I'm not a professional, तो मुझे बहुत बढ़िया से उसको प्रेजेंट करना नहीं आता है, पर तकरीबन 250 के करीब वीडियोस हैं। बहुत कुछ तो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ मेरे लेक्चर्स हैं जो वहाँ लगे हैं विद्यार्थियों के लिए और यंग टीचर्स के लिए। वो काम के हो सकते हैं, पर कुछ बहुत ही मजेदार वीडियोस हैं। ये सुबह सुबह का सुखना का सुख देखिए। और ये सब मैंने जानबूझ के ये सारी इकट्ठी लगाई इसीलिए, सो दैट आपको मजा आ जाए। और ये देखिए, ये इतने ये वीड्स जो हैं ये खत्म कर दें इसको, झील को पूरी को। उधर में कोने में यही हाल है, और ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है लेक का। यही चलता रहेगा तो खत्म हो जाएगी। टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट पर ब्रेक, पंजाब की अप्रूवल हाई कोर्ट ने की खारिज। हाँ, पंजाब सरकार ने किया था, यस यस आई नाउ रिमेम्बर। और उसमें ढेर सारे अपने जो वो होते हैं बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और राजनेता और अमीर वाले, क्योंकि वो उधर में नॉर्थ में चंडीगढ़ के अमीर वाले ही रहते हैं, साउथ में हमारे जैसे रहते हैं रिटायर्ड मास्टर लोग, जो बेचारे गंदगी भी सारी इधर ही है, सारा पैसा उधर ही खर्च होता है। रॉक गार्डन क्या हुआ, झील क्या हुई, 10 सेक्टर, और 10 सेक्टर भी गंदा क्या हुआ है, वही सिर्फ वहीं पे है जहाँ म्यूजिक चलता है, सुखना लेक, और आजू बाजू के जो बड़े बड़े वहां पे साहब लोग रहते हैं, उन्हीं का सुख है जो इम्पोर्टेंट है।
बाकी के शहर का सुख इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं देनी चाहिए बात। सच्ची बात तो यही है। ये टाटा कैमलट हाउसिंग प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल है लालच की और शहर को बर्बाद करने की, एक जिसको बोलते हैं षड्यंत्र की। और भगवान भला करे हाई कोर्ट का, भगवान भला करे जज साहिबान का, जिन्होंने चंडीगढ़ के कंसेप्ट और का टोटल इसको जिसको बोलते हैं ना ठेंगा दिखा के उसको लेकर वजह की आत्मा तड़पती होगी कि कैसे कैसे लोग आ गए इस शहर में। जो एक घर, ये मनाली ले रोड पे क्या शांति। इस एरिया में मैंने एज ए जियोलॉजिस्ट ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम 1977 में गया था। और उसके बाद में लास्ट ट्रिप मेरा इस एरिया में था 2009 में, 2 months बिफोर माई रिटायरमेंट। उसके बाद हाई अल्टीट्यूड में मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, बट बहुत गजब के एरियाज हैं और इन पे हमने काफ़ी बातचीत की है। और ये वाले, ये देखिए ये चंद्रताल 79 में आज़ादी के दिन 15 अगस्त को हमने यहाँ तंबू लगाया हुआ था। और मेरे सीनियर थे सुदर्शन सिंह कंवर जी, और हम लोग उस दिन छुट्टी की थी, हमने गए नहीं थे ट्रैवर्स पे इन पहाड़ों में, और विदेशी यहाँ से घूम रहे थे। वो हमें बोले, हे यू आर हैविंग फन। हमने कहा भैया यू हैव कम हियर फॉर फन, वी कम हियर फॉर आवर जॉब। हम यहाँ पे जो तंबू है वो हमारा दफ्तर है, और लोग नौकरी पे सूट टाई लगा के जाते हैं, हम नौकरी पे वो बड़े वाले जूते डाल के और जैकेट वैकेट कस के टोपी टोपी लगा के हम ऐसे जाते हैं थोड़ी पकड़ के। जो जिसको बोलते थे वो क्लास 1 ऑफिसर, पर हम ऐसे वाले ऑफिसर हैं जो तंबू में रहते हैं और मोटे जूते डाल के चलते हैं, किसी भी नदिया नाले को पार करते हैं, किसी भी झील में के किनारे अपने तंबू लगा लेते हैं। तो ये हेमकुंड साहब, ये मेरा फर्स्ट हाई अल्टीट्यूड ट्रिप था हेमकुंड साहब का। तब ऐसा नहीं था। मैं 74 में गया था, मसूरी एकेडमी में था मैं फाउंडेशनल कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैकिंग, ये पूरा का पूरा जो वेटलैंड्स का कंसेप्ट है, कहते हैं आप इन एरियाज में जाइए, पैदल चल के जाइए, ये आपको शक्ति देता है, मन की ताकत देता है, तन की ताकत देता है, और आपका चरित्र निर्माण होता है ऐसे में जाने से। अभी जो सारे पहाड़ के जो हमारे 4 धाम हैं, लोगों ने पता नहीं क्या कहा, यहाँ पे चौड़ी चौड़ी सड़कें बना दो, 6 लेन बना दो, ये बना दो, वो बना दो, और हमने पूरे हिमालय का बेड़ा गर्क कर दिया उस चक्कर में। हिंदुस्तान की सभ्यता में जो एक तीर्थ यात्रा होती थी, वो सिर झुका के और दिल से होती थी, वो आराम से होती थी, वो पिकनिक नहीं होती थी, वो एक तपस्या होती थी। और जो तीर्थ यात्रा थी, तीर्थ यात्रा का कंसेप्ट नहीं बदल सकता जस्ट कुछ लोगों की जल्दीबाजी में। तो हिमालय को आज भी बचाना है, इन वेटलैंड्स को बचाना है, तो हम लोगों को ये रेकलेस जो अभी डाउन टू अर्थ का एक इशू आया है 1 फरवरी को, उसका वो इशू ही हिमालयस पे डेडिकेटेड है, डाउन टू अर्थ मैगजीन का। उसको प्लीज देखिए। उसका एक टाइटल है इंजीनियरिंग डिजास्टर्स। जियोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जियोलॉजिस्ट बहुत समझदार होता है, जियोलॉजिस्ट जानता है पहाड़ को किस चीज से नुकसान होगा। जो पहाड़ पे लोग रह रहे हैं वो उनको उनको चौड़ी 6 लेन नहीं चाहिए। फौज के लिए जो थी, फौज ने सड़कें बहुत बढ़िया बनाई थी, फौज ने ऐसी चौड़ी सड़कें नहीं बनाई थी जिसमें आधी सड़क पे लैंडस्लाइड गिर जाए। वो कहते हैं ना हिंदी में, आगे दौड़ पीछे चौड़, ये वाली सड़कें। और इतने, अब जब सोलर का इतना कंसेप्ट आ गया है, विंड एनर्जी इतनी आ सकती है, तो बड़े बड़े डैम बना के पूरे हिमालय की इकोलॉजी बना बर्बाद करना, नीचे से ढेर सारे सैकड़ों टनल्स डाल देना। और एक जोशीमठ तो आपके सामने है, इस पूरे हिमालय में, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी, और दूसरे एरियाज में भी ढेर सारे जोशीमठ जैसे होंगे, बिकॉज हर जगह पे मोरेन्स सेटल हुई जब ग्लेशियर डिसअपेयर हुए। हर जगह पे वो सॉफ्ट रॉक्स हैं, जहाँ पे गांव बसा, फिर टाउन आया, और धीरे धीरे करके जो ओरिजिनल आर्किटेक्चरल विजडम थी हमारे गांव के बुजुर्गों की, अगर हम उसी पे चलते, हल्के फुल्के मटेरियल से घर बनाते और टावर्स न बना के लिटरली एक्सपैंड करते,
छतें हल्की रखते, जापानीज वाली अकल से काम लेते कि भूचाल आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकता है, हिमालय में भी आ सकता है, जैसे जापान में आता है। गिर जाए तो आपको छोटी मोटी चोट लगे, हम मरे नहीं। तो एक डाइग्रेशन मैंने, ये सोमवरीरी झील जो है लद्दाख की, इसके पूरी झील का चक्कर लगाने के लिए आपको 2 हफ्ते चाहिए कम से कम। क्या सौंदर्य है, क्या शांति है। अब यहाँ पे अगर आपने चौड़ी सड़क बना दी किसी के लिए जाने के लिए और वो चले गया वहाँ पे, तो इसका मतलब है सिर फिरे वो जो हमारे बिगड़े लाडले वहाँ पे ढेर सारे पहुंचेंगे, हर तरह की मलबा फेंकने के लिए। और पूरी, मैं उसको क्या, मैं, यंग जनरेशन नाराज हो सकती है, हो जाए तो हो जाए, क्योंकि यंग जनरेशन बाद में कहेगी कि अरे पहाड़ हमारे इतने सुंदर थे, आपने इनको अनसेफ और इतना अनसिविलाइज्ड क्यों किया, बेड़ा गर्क क्यों किया इन सारी वेटलैंड्स का। ये नैनीताल वाली झील आपके सामने है, सारा पानी पीने का यहीं से जाता है। और ये क्या वेटलैंड है, इतनी सुंदर है। और किसी को ये नहीं पता कि चूने के पत्थर जिस पे ये सिचुएटेड है, क्रोल हिल का, क्रोल टिब्बा का, इसको क्रोल लाइमस्टोन कहते हैं। और ये 60 करोड़ साल पुराना समुद्र में बना पत्थर है। जब तब बना था जब इंडिया एक आइलैंड था और बहुत दक्षिण में था, यहाँ नहीं था, हिमालय तब बना नहीं था। ये झील तो अभी अभी बनी है, अभी बनी है, जिसको बोलते हैं 50 से 1000 साल पहले। तो और कभी हमने मान लो नैनीताल के नीचे से भी एक टनल निकाल दिया, जो वो होगी ना उथल पुथल, जो ब्लास्टिंग स्लास्टिंग होगी, मानिए मेरी बात, स्प्रिंग्स बर्बाद हो रहे हैं। और अगर उस झटकेबाजी में पूरा झील का पानी निकल गया तो जानिए आप क्या कहेगा नैनीताल, अरे के अरे मूर्खो तुमने क्या कर। वैसे भी नैनीताल में एक साइड से ढेर सारे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उस दिन डॉक्टर कोटलिया ने बताया था। हर शहर में लैंडस्लाइड को कंटेन करना, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। घरों की सेफ्टी रहे, और जैसा नाजुक एक डेलिकेट बैलेंस में शहर पहाड़ का चला हुआ है, वो वैसे ही बच जाए तो भगवान का शुक्र मनाए। वहां पंगा नहीं लेना, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, वो एक्चुअली जियोलॉजिस्ट की नजर में और वहां रहने वालों की नजर में और भगवान की नजर में बर्बादी है। आबादी ही रहने दीजिए, बर्बादी ना करिए। वो कहते हैं नहीं जी डेवलपमेंट तो बड़ी जरूरी है। कहते भैया डेवलपमेंट आप गुड़गांव में कर लो, दिल्ली में कर लो, पहाड़ हमारा हिमालय इज द यंगेस्ट मोस्ट डेलिकेट एंड द हाईएस्ट। यहाँ पे एल्प्स की नकल नकल भी ना करिए। पर आप जो सड़क गुड़गांव में बना रहे हो वैसी यहाँ ना बनाओ, प्लीज बख्शो बख्शो, हिमालय को बख्श दो। ये बेचारा हिमालय, इस यहाँ पे ही हमारे सब देवता रहते हैं। यहीं पे जो ये रहते हैं लोग, बड़े इनोसेंट लोग यहाँ पे रहते हैं, जो हमारे पहाड़ों में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में, यही यही हैं देवता हमारे। तो इन अगर 20,000 लोग उजड़ गए जोशी मठ से और दूसरे शहरों से बस उजड़ गए, नैनीताल से उजड़ गए, अगर हमने यहाँ की झील का पानी सारा निकाल दिया नीचे से कुछ ठोका ठाकी करके, तो आप बताइए फिर क्या, वो गालियां देंगे, वो आने वाली जनरेशन कहेंगी बेवकूफों को हमने यहाँ पे आने दिया, जिन्होंने यहाँ पे वो टाइटल बड़ा बढ़िया डाउन टू अर्थ का, इंजीनियरिंग डिजास्टर्स। दे सेड डिजास्टर्स हैव बीन इंजीनियर्ड। प्रॉब्लम क्या होती है, इंजीनियर्स के पास ही पैसा होता है, ताकत होती है, और जो जियोलॉजिस्ट बोलता है, काम की बात बोलता है, वहां पे वो पैसे का खेल है सारा ना। तो वो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाना है, वहीं पे सब कुछ होना है, वो पैसा खर्चना है जो आया है, और हमने डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट के बाद में वो जिसको बोलते हैं आगे दौड़ पीछे चौड़, बेड़ा गर्क करते हैं। उस डेवलपमेंट से सारी वेटलैंड्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस तरह की डेवलपमेंट से थोड़ा बचा के रखिए। ये सेटेलाइट इमेजरीज हैं, कुछ फटाफट में दिखा दूं। ये एक ना झील ना नदिया, ये यूनामसो बारालाचा के पार में 16,500 फीट का पास है मनाली ले रोड पे। ये रही वो सोकर झील। ये सॉल्ट इंक्रस्टेशन है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नहीं। गांव वाले लोकल लोग जानते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर है वो ये वाला सॉल्ट खा ले, वो दूसरा सॉल्ट नहीं खाए। और ये एरिया जो आपको हरा दिख रहा है, ये अगर आप जून में चले जाइए तो इस पे आप चलेंगे तो हो सकता है इसके अंदर समा जाए। क्रेन भी नहीं आपको खींच सकती, क्योंकि इतनी देर में आएगा तब तक आप अंदर चले जाएंगे।
और कहीं जीप चला दी तो जीप समेत अंदर में आप दफना दिए जाएंगे हमेशा के लिए। ये देखिए, ये सॉल्ट के ढेर लगे हुए हैं, उन्होंने इसको माइन कर लिया है मैनुअली, हाथ से। एक बहुत बड़ा एरिया है, हार्डली 10% बचा है। दिस लेक इज श्रिंकिंग एंड सॉल्ट इज फॉर्मिंग एवरीवेयर। ये वो प्लेटफॉर्म बनाया था। दिस इज द टॉल गाय फ्रैंक रीडल, दिस इज कोटलिया, दिस इज का नाम भूल गया मैं। ये ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता थे। इसको वो जर्मन टीवी ने, आइंस्टाइन की मेमोरी में एक मूवी बनी थी वहां पे, ये क्लाइमेट चेंज की का एक्सपीडिशन था। ये फोटो मैंने खींची है, इसलिए मैं पिक्चर में नहीं हूँ। तो ये है, ये इकट्ठे, ये रहा उनका कैमरा क्रू का। ये उसका किसी का कैमरा खराब हो गया तो वो गया दिल्ली, वो गया ले, और वहां से दिल्ली की फ्लाइट ली और उसको ठीक करा के आया। बिकॉज अगर कैमरा नहीं काम करेगा तो सारा उसका एक्सपीडिशन का भट्टा बैठ जाता। तो इसी कहानी पे मैं खत्म कर दूंगा अपनी टॉक को। ये इसको धकेल के हम खींच के अंदर ले गए थे, बोट से खींचा एक बार इस लेक में, एक सेंट्रल पॉइंट पे जाके उसको एंकर कर दिया, और जो बीच वाला था उसको खाली रखा हुआ था, उसमें से ड्रिलिंग की जा रही थी। उसमें एक आगे में एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो कोर कटिंग होती थी, वो गिर गया अंदर। अब वो गिर गया तो सारा एक्सपीडिशन तो गया, वो तो खराब हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा। तो ये श्रीमान जो 6 फुट 2 इंच के थे, कोटलिया की तो हाइट कम थी, अगर ये जाता अंदर तो ये तो डूब जाता। उसका चांस था कि वो खड़े रह सकता था उसके अंदर जाके, और इतनी, उसने क्या किया, उसको वर्टिकली अंदर जाना था आराम से। अगर कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता तो फिर उसका सिर ये इस प्लेटफॉर्म में बजना था और वो बाहर नहीं निकल सकता था, वुड गॉट इंजर्ड। वो फटाफट बोट लेके तंबू में गया और उसने कपड़े उतारे और पूरे जिस्म पे वैसलीन लगाई, और फिर वो अंदर गया। ठंडा पानी, इमेजिन 17,000 की हाइट है, अंदर गया और उसने ऐसे करके नीचे में हाथ डाला और निकाला, और जब तक वो बाहर नहीं आ गया, कोटलिया बोला पता नहीं वो बेचारा जिंदा है कि मर गया। और अगर कहीं कहता मर गया, अगर कुछ उसको कुछ हो गया तो हम दोनों जो है ना, हम बड़े कॉम्प्लिकेट होंगे, इंक्वायरी बैठ जाएगी, कहेंगे देखो इन्होंने जर्मन को मरवा दिया। हम इतने घबरा ही रहे थे, इतने में फ्रैंक रीडल का हाथ बाहर आया पहले, और उसके हाथ में वो था जिस ड्रिलिंग का, उसका नाम भूल गया मैं, वो आगे जो लगा हुआ था ऐसे नुकीला था, और उसके बाद में वो बाहर आया। वो मोमेंट जो थी इस कैमरा ने कैप्चर की थी। वो पिक्चर जो थी जर्मन टीवी पे शाम के 7:45 पे आई थी। मेरे पास डीवीडी है वो, पर वो डीवीडी का कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, नॉट ए वेरी गुड, बट आई थिंक श्योरली दैट शुड बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट। इसका टाइटल था, ये आइंस्टाइन को डेडिकेटेड थी, thoughts of Einstein or dreams of Einstein, something like that. And Kotlia would have it for sure, and we can. So this is my wetlands that I had. I've gone twice to Soker Lake in 2004-5, and chance to have this research, this expedition. I was a part of this international expedition in Soka. Let me see if there is anything else to show you. Yeah, Sundarban, ये एक बड़ा जबरदस्त एरिया है जिसके बारे में मैंने बोला कि अगर ये इसका मैंग्रोव चला गया तो कलकत्ता गया। हमें बचाना है कलकत्ता को, तो इसको बचाना है। यही हमारी ढाल है कलकत्ता को बचाने के लिए। ये हेमकुंड साहब की सैटेलाइट इमेजरी। भाखड़ा डैम देखो कितना बड़ा दिखता है। ऑल दीज आर मैन मेड वेटलैंड्स नाउ। ये हमारा महाराणा प्रताप सागर, नगरोटा, हरिपुर, हीराकुड, ओडिशा, गोदावरी रिवर। गूगल अर्थ पे जाइए आप लोग, और गूगल अर्थ पे थोड़ा सा उसका टिल्ट बना लीजिए और वर्टिकल हाइट को एक्सेगरेट कर लीजिए, देन यू विल बी एबल टू सी लॉट्स ऑफ वेटलैंड्स ऑफ द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट आप एक बार गूगल अर्थ लैपटॉप पे या बड़ी स्क्रीन पे देखें
So you can see all the mountains, all the lakes, and all the rivers of the world. It's big fun to do that. It's big fun to do it on the smart TV, big TV, 46 or 55 inches with the family. Let the kids in the family, let the elders in the family have a habit of seeing all the rivers and all the lakes of the world. क्योंकि ट्रैवल तो करना संभव नहीं होता है, पर ये देखना एक गूगल अर्थ पे जाके, ये एक बड़ा गजब का मजा है। ये मजा वेटलैंड डे पे मैं हमेशा बोलता हूँ सबको कि ये कर लो, और आप देखो आपका नजरिया बदल जाएगा दुनिया को देखने का, ये इसको एंजॉय करने के बाद में। ये हमारा असम का एरिया, और ये भी असम का एरिया। नदियां ऊपर से कैसे दिखती है, गजब की दिखती है। ये कनाडा का हडसन बे, एंड ये एक एटलस थी बड़ी भारी पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फ्लोर पे रेफरेंस सेक्शन में, क्योंकि मुझे को लेक्चर का तैयारी करनी थी, तो मैंने वहां पे जाके फटाफट फोटो खींची थी कि कुछ नज़ारे भी तो दिखा दूं दुनिया को। इसके आई थिंक आई एम डन। ये सैटेलाइट इमेजरी हमारे कश्मीर की और हिमाचल की और पंजाब की। अब देखो हिमालय को ऐसे, ये सोमवती लेक है जिसकी मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई थी। तो हिमालय के दर्शन गूगल अर्थ से करना एक अद्भुत एक तजुर्बा है, एक एहसास है। ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। ये आपको ये मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज एक बार वेटलैंड डे पे ये कसम खाइए कि हम बिफोर द नेक्स्ट वेटलैंड डे या कमिंग एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून हम ये सब कुछ देख लेंगे। एक बार अपने परिवार को दिखाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, और इससे बड़ी देखने की से बड़ी कोई एजुकेशन नहीं होती। ट्रैवल एंड सी, ये ही अल्टीमेट एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन के साथ में जो रूटीन एजुकेशन है, उसके साथ में ये वाली एजुकेशन जो जिसको हो जाती है, वो मैंने आपको चंद्रताल दिखाई थी ना, वो ये ऊपर से तस्वीर है, उसकी बात ही और होती है। ये वेटलैंड, ये है वो मूवीज जो ब्रिटिश काउंसिल की प्रिजर्व द फ्यूचर, ये टाइटल है उसका। दिस इज लद्दाख, दिस इज उड़ीसा, एंड दिस इज द ग्रीन एगनी, एंड ये कुल्लू। ये है 15 मिनट की उसकी वो जो मूवी है सुंदरबन की। आई थिंक दैट शुड बी ऑल। And this Ramsar Secretariat is Greenland का, this is in Switzerland, and Ramsar list of international importance, इसमें ढेर सारे वो हैं। मैं देखूँ इंडिया के आपको दिखा दूँ थोड़े से। ये हमारी रामसर साइट्स जो हैं, चंद्रताल, ये राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये हरिके लेक, ये सब की सब रामसर साइट्स में। ये एक इसमें आना हमारी किसी साइट का, पाकिस्तान की वेटलैंड लिस्टेड इन रामसर, बलूचिस्तान, सिंध, रन ऑफ कच्छ, तांडा डैम, ये उस एटलस से है, रामसर वाली से, सेंट्रल एंड साउथ एशिया। क्या क्या बायोटिक, क्या ब्यूटी है। पिक्चर प्लांट, ये ऐसे लगता है जैसे वो एक पानी इकट्ठा करने का वो जो मश्क होती थी ना, लेदर वाली, वो। these are the typical wetlands, typical। इसको देखना, इसको एप्रिशिएट करना, इसको अपने बच्चों को दिखाना, और इसकी साइंस को समझना, और सबसे बड़ी बात ये, जो इको टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि इकोलॉजी एज सच प्रिजर्व्ड हो, हम उस इकोलॉजी को एज सच देखें। और यहाँ पे कुछ इन लोगों को दिमाग में पता नहीं क्या आ गया कि हम 6 लेन बनाएंगे तो वो देहरादून से 2.5 घंटे में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। अरे बाबा,
वो कहते हैं हमें 2 दिन में पहुंचा दो, पर हमें पूरी की पूरा हिमालय ऐसा जैसा था वैसा दिखाओ। कम से कम उसका बेड़ा गर्क करो, कम से कम जो जरूरी हो। हमारी मिलिट्री ने ढेर सारी सड़कें बनाई थी 1962 की जंग के बाद में, और उसमें जियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होता था। हम लोगों को हर तरफ आवाज उठानी चाहिए कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में, किसी भी इंजीनियरिंग एक्टिविटी में बिना जियोलॉजिस्ट की इजाजत के नहीं होगी, नहीं होगी। जियोलॉजिस्ट सेफ्टी देखेगा, जियोलॉजिस्ट सस्टेनेबिलिटी देखेगा, जियोलॉजिस्ट देखेगा कि नैनीताल के नीचे आप कोई टनल ना डाल दें कि झील का पानी गया, स्प्रिंग्स बर्बाद हो गए, नदियां बर्बाद हो गई। अगर वो बर्बाद होगी तो फिर हिमालय क्या बचा? हिमालय के लोग बर्बाद हो गए तो फिर क्या बचा? फिर क्या गुड़गांव वालों ने हिमालय पे कब्जा करना है जाके? नॉट ऑल वेटलैंड्स लुक वेट। सी, ये भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। नमी की मात्रा ज्यादा है तो हरियाली बहुत है, बट वो इसी वेटलैंड झील नहीं होती हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। By field and remote investigations, there are 3 criteria: wetland, hydric soils, hydrology, wetland vegetation. I think we are nearing the end. I should just rush through it and finish it here. Ecological services provided by wetlands, values, estimates of importance or worth of one or more of wetland functions to society. Thank you so much. And Arun, you're great. In spite of your issues, you arranged it, and I'm so grateful to you. Thank you very much. God bless you. थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही हमेशा की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपकी टॉक के साथ, और जो विजुअल आप दिखाते हैं डेफिनेटली उसके साथ तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। तो आज का जो दिन है वेटलैंड्स के ऊपर, उसको सार्थक करने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। एक इनफॉर्मल टॉक यहाँ पे हम लोगों ने की, और ये कोशिश करते हैं हम हमेशा कि साइंस को आम लोगों तक लेके जाएं, उनकी भाषा में लेकर जाएं। और मेरे ख्याल से प्रोफेसर अरुण दीपालोवाले जी से बेहतर ये काम और कोई नहीं करता। इनकी भाषा पे कमांड, सब्जेक्ट पे कमांड, और जिस तरीके से ये वक्तव्य देते हैं, जिस तरीके से सुनने वाले को आपस में जोड़ लेते हैं अपने साथ, वो बड़ा ही कमाल का है। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक के ऊपर, सबसे पहले मैं उनको विदा कहूँगा। अगले सेशन तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे, और अगले सेशन तक जुड़ने के लिए आप सोशल सब्सटेंस का जो फेसबुक पर ग्रुप है उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8360188121, जिस पर भी आप मैसेज भेज के व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं। और